Hello everyone. Today I am going to present ISI Bachelor of Statistics and Bachelor of Mathematics undergraduate program UGB paper of the year 2017. Last week I presented UGA of the same year 2017. My name is Shashank Shekhar, Master Teacher of Mathematics at Vedantu. So coming to the problems, the very first question asked in the paper, there were total 8 questions in the paper. The first question is on trigonometry, is a proving problem. Let the sequence an greater than equal to 0 greater than equal to 1 be defined as an equal to tan of n theta, where tan theta is given as 2. Show that for all n is a rational number. See, tan theta, that is a1, right? So a1 is rational given, so you have to prove that an for every n is rational number which can be written with an odd denominator, right? So let us see how can we prove it, right? So general statement मान सकते हैं यहाँ पे मान लो let the statement Pn, P मैं n को ब्रैकेट में ले लेता हूँ, Pn is defined. So we are going to prove it using mathematical induction. Defined as, ठीक है, defined as Pn an is equal to tan of n theta is a rational number. जो हमें प्रूफ करना है वही स्टेटमेंट है, is a rational number with an odd denominator, right? Clearly, say if we talk about P1, right? P1 का क्या मीनिंग है? n को 1 डालेंगे, a1 which is tan theta and which is given, 2 given, ये given है. अच्छा, इस 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, तो आप जो देख सकते हैं डिनोमिनेटर ऑड है, सो इज ट्रू. द स्टेटमेंट यहाँ पे n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है. P1 इज ट्रू, राइट? रैशनल नंबर है, 2 इज रैशनल नंबर एंड द डिनोमिनेटर इज 1 इज ऑड. सो नाउ assume Pm to be true. Pm, that is am is equal to tan m theta to be true. To be true मतलब यहाँ हम ये कह सकते हैं दैट इज tan m थीटा जो है वो हमारा, एक सेकेंड जरा सा मैं इसको थीटा थोड़ा बेटर कर लूँ. tan m थीटा को लिख सकते हैं यहाँ पे p/q रैशनल नंबर मान रहे हैं, जहाँ पे हमने बोला है कि pq आपके इंटीजर्स हैं एंड q इज एन ऑड इंटीजर. ये हम अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ p/q ले लिया. अब on the basis of Pm we will talk about Pm+1. This is the idea of mathematical induction, you know it. So Pm+1 says, Pm+1 स्टेटमेंट को चेक करें तो am+1 आएगा. am+1 वैसे हम क्या लिख सकते हैं, देखें, tan ऑफ m+1 थीटा. इसे हमें क्या प्रूफ करना ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रूथनेस ऑफ Pm कि वो am जो है वो tan m थीटा वो रैशनल है. तो tan m+1 थीटा को हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan m थीटा प्लस थीटा, जिसका tan a प्लस b के फॉर्मूले से tan m थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan m थीटा इंटू tan थीटा. नाउ tan थीटा इज 2 गिवन ऑलरेडी, राइट? तो इसको मैं लिख सकता हूँ, tan m थीटा को p/q लिख लेता हूँ, और tan थीटा इज 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस p/q इंटू 2. ये क्या बन गया, p प्लस 2q डिवाइडेड बाई denominator becomes q minus 2p. All right. So
obviously this is a rational number because p q दोनों integer थे, which is a rational with denominator is equal to क्या रहा है, q minus 2p, which is definitely odd as q is odd, q is equal to odd, और 2p तो इवन है ही, तो इवन ऑड माइनस 2p मतलब इवन, तो q इज ऑड माइनस इवन इज ऑड, राइट। तो यहाँ पे जो है ये बात प्रूव हो जा रही है कि अगर pm ट्रू है तो pm प्लस 1 ट्रू है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn would be true, pn is true for all n belongs to natural numbers। डन, ये हो गया प्रूफ्ड। डन है बच्चों, क्लियर है। सो दिस वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको हमने प्रूव किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कंसिडर वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखिए, कंसिडर अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 एज गिवन इन द डायग्राम बिलो। ओके, ये सर्किल बना हुआ है, इसका रेडियस 6 है, यानी डायमीटर इसका 12 है। Let B, C, D, E be points on the circle such that BD and C when extended, BD and C को extend कर दिया, देखिए extend करके A पे मीट करा रहे हैं, intersect at A। If AD and AE have lengths 5 and 4 respectively, AD का लेंथ इन्होंने 5 दे रखा है बच्चों, and AE का लेंथ 4 दे रखा है, इसको मार्क कर देते हैं respectively, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। And DBC is a right angle. DBC already shown in the picture. DBC is right angle triangle. Then show that the length of the side BC is 12 plus 9 root 15 upon 5. तो सबसे पहले हमें तो BC का लेंथ निकालना है, राइट। तो BC का लेंथ हम निकालेंगे। सबसे पहले 90 का यूज़ करना चाहूँगा मैं। जैसे ही सर्किल पे किसी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनता है, इसका मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड है जो 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है वो एक्चुअली डायमीटर हो जाएगा। यानी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ डीसी कॉर्ड की। सो इफ़ आई ड्रॉ डीसी फर्स्ट, तो डीसी का अगर मैं बना लूँ यहाँ पे डीसी कुछ इस तरह से, तो ये जो है डायमीटर होगा इस सर्किल का, यानी यहाँ कोई सेंटर हो गया, यहाँ पे मान के चल सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे ओ मान लेते हैं सेंटर, ठीक है। सो डीसी इज अ डायमीटर, क्लियर है, क्योंकि 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो इस सिचुएशन के हिसाब से फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल डी ई सी इज ऑल्सो 90 डिग्री। इसको अगर मैं कनेक्ट कर दूं, एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, ये एंगल 90 है, मीन्स ये भी 90 है, ऑलराइट। तो जैसे हम यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे ये बना रहे हैं, ओहो ये यार, एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन, या दिस इज एंगल 90, सिंपल। सो राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे इन राइट ट्रायंगल हम कह सकते हैं, ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ए ई डी, आप देख सकते हो डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट इज 3। तो 3 4 5 वाला ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये एंगल, ये साइड आपका 3 हो गया सिंपली। और ये ऑलरेडी 6 प्लस 6, ये 6 दिया है, रेडियस इज 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल 12, DC इज 12। नाउ कमिंग टू द राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ DEC। आप बताओ EC की क्या वैल्यू है, EC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, EC इज इक्वल टू अंडर रूट 144 यानी 12 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दैट इज 9, दैट इज अंडर रूट 135, ऑलराइट।
ठीक है. सो EC स्क्वायर अंडर रूट 135, इसको मैं फिर फर्दर लिख सकता हूँ 15 इंटू 9, दैट इज 3√15. ये आ गया EC. नाउ सिमिलर ट्रायंगल्स बन सकते हैं यहाँ पे, दो राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम देखें, या फिर मैं एंगल थीटा ले रहा हूँ यहाँ पे. इफ आई कंसीडर एंगल थीटा है, दिस एंगल टू बी थीटा, तो फ्रॉम द ट्रायंगल ADE साइन थीटा क्या लिखना चाहोगे आप? साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन थीटा इज DE upon AD. Both are known to us. And from the bigger, largest triangle ABC, what is sin theta? Is BC, which is required to be found. ये फाइंड करना है. BC upon AC, और AC हम फाइंड कर चुके हैं बच्चों. तो यहाँ से सीधा आ रहा है DE यानी 3, AD यानी 5, BC तो हमें फाइंड ही करना है, और ये आपका AC हमें हो जाएगा AE प्लस EC. AE इज 4 एंड EC इज 3√15. तो यहाँ से सीधा BC की वैल्यू हमें मिल जाएगी. वेरी इजी टू फाइंड. यहाँ आ गया 12 प्लस 3 into 3 9√15 डिवाइडेड बाई 5. एंड दिस what was we had to prove is same. So 12 plus 9√15 upon 5 is the value of BC. Coming to the next question. Suppose question number 3, f r to r is a function given by fx equal to, एक function दिया हुआ है, x equal to 1 पे it is 1 and x not equal to 1 पे function is given. Because 1 पे ये जो lower line है, second line is not defined as sin के आप angle में देखिए, x minus 1 is in denominator. इसमें there are two parts to be obtained. First is finding f dash 1 and second evaluating a limit u tending to infinity under bracket and 100 u minus u times some sigma is there. ठीक है. So coming one by one, हम यहाँ पे पहले बात करेंगे पार्ट A की. तो पार्ट A में हम आते हैं बच्चों. पार्ट A में f dash 1 लिखना चाहूँगा मैं, which is limit of, जो फॉर्मूला है fx minus f1 upon x minus 1 x tending to 1, जनरल फॉर्मूला है. सो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x tending to 1. अच्छा, fx की वैल्यू अगर आप देखो, x tending to 1 है, मतलब x is not 1, तो fx को हम लिखेंगे e raised to the power x raised power 10 minus 1, और x minus 1 से डिवाइड भी करें. और अच्छा, f1 की वैल्यू दिस इज 1, ये 1 है, तो मैं -1 कर देता हूँ यहीं पे, और x minus 1 से डिवाइड भी कर देता हूँ. रिमेनिंग पार्ट में मैं x minus 1 से डिवाइड करते हुए x minus 1 इंटू साइन ऑफ 1 बाई x minus 1 लिख देता हूँ. ठीक है. नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ मैं लिख सकता हूँ e raised power x raised power 10 minus 1 अपॉन e raised power, सॉरी, तो यहाँ मुझे लिखना चाहिए या x raised power 10 minus 1 इंटू x raised power 10 minus 1 डिवाइडेड बाई x minus 1. इसको इस तरह से मैनिपुलेट लिखा जा सकता है. प्लस ये x टेंडिंग टू 1 पे ये तो 0 हो जाएगा, और ये जो है सम नंबर बाउंडेड है, फाइनाइट है, बाउंडेड, साइन इज बाउंडेड फंक्शन है. तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग e raised power समथिंग, सो व्हेन x टेंड्स टू 1 x raised power 10 minus 1 टेंड्स टू 0, स्टैंडर्ड लिमिट के हिसाब से ये 1 आ जाएगा, और यही आ जाएगा 10, यानी n इंटू 1 raised to the power n minus 1, दैट इज 9, और ये 0 इंटू समथिंग बाउंडेड बिटवीन -1 and 1 साइन की जो वैल्यू होती है. तो ये फाइनली बच्चों क्या आ रहा है, हमारे पास 10 निकल के आ रहा है. तो पार्ट A का आंसर है 10. नाउ कमिंग टू पार्ट B. पार्ट B मैं यहीं पे करूँगा. यहाँ देखिए, इसको मैं अगर मैं u 1 by u को जैसे मैं x लेता हूँ, ठीक है, पुट x एज, मतलब u एज 1 by x, ऐसा कर लें, u एज 1 by x. तो बताइए व्हेन u टेंड्स टू इन्फिनिटी x टेंड्स टू 0 प्लस, और यहाँ पे आ जा रहा है 100 u मैं कॉमन ले रहा हूँ, यानी कि
यू यानी 1/x नीचे आ जाएगा, और ये सिग्मा है k इक्वल टू 1 to 100 f ऑफ 1 माइनस प्लस के एक्स. 1/u इज के एक्स, 1/u को x लिया है. तो इस लिमिट को हमें फाइंड करना है सिंपली. तो अगर आप देखें एक्सटेंडिंग टू 0, अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ टर्म सिग्मा में कितना है, 100 है. तो 100 को मैं सिग्मा 1 लिख सकता हूँ, राइट. तो सिग्मा 1 लिख दिया, और माइनस एफ ऑफ 1 प्लस के एक्स लिख सकते हैं, 1 प्लस के एक्स, और नीचे x है. तो ठीक है, अभी मैं इसको x ही रहने देता हूँ. ठीक है, ऐसे चल जाएगा. 1 to 100. नाउ कमिंग अगेन, इसको मैं माइनस कॉमन लेते हुए बच्चों मैं लिख सकता हूँ एक्सटेंडिंग टू 0, और सिग्मा, अब देखिए इस x को भी अंदर लिया जा सकता था, तो मैं लिखूंगा f ऑफ 1 प्लस के एक्स माइनस 1/x. x की जगह के एक्स लिख देता हूँ, और एक और k यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ठीक है, और ये k इज इक्वल टू 1 to 100. वी कैन राइट लाइक दिस. एंड इफ यू सी दैट के एक्स को लिखा जा सकता है 1 प्लस के एक्स माइनस 1. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बन गया, ये f-1 फॉर एवरी k, लाइक k1 k2 k3 कुछ भी है, ये f-1 का फॉर्मूला है. दिस इज माइनस ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, f-1 का फॉर्मूला है ये, इनटू k आ रहा है सिग्मा इज मिसिंग, सिग्मा मैंने यहाँ पे लिखना चाहिए. हाँ, सो यहाँ हम लिख सकते हैं सिग्मा f-1 विच इज़ अ फिक्स नंबर, हमारे पास इसकी वैल्यू 10 है, इंटू k फ्रॉम 1 to 100. सो दिस बिकम्स माइनस ऑफ 10, f-1 को मैंने बाहर कर दिए, 10 कांस्टेंट, इंटू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 100. देखा है तो मैंने एक्सटेंडिंग टू 0 यहाँ पे लिमिट की ज़रूरत नहीं है अब, बिकॉज लिमिट हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं. लिमिट के हिसाब से मैंने f-1 बोला था. सो दिस बिकम्स नाउ, सो माइनस 10 इंटू 100 इंटू 101, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 100, विच इज माइनस 10 इंटू 5050. So answer to this question must be minus of 50500. ये second part का answer है. Alright. So now, so this was question number 3. Not a tougher one, simple ही था ये. Question number 4. ये कहता है कि let S be a square formed by the 4 vertices 1 1 1 minus 1 minus 1 1 and minus 1 minus 1. Let the 4 points are taken in the 4 quadrants 1, 1 के हिसाब से. Let the region R be the set of point inside S which is closer to the center. Center इस square का हो जाएगा origin basically. ठीक है, than to any of the 4 sides. Find the area of the region R. ये को सेम क्वेश्चन जेई में आया हुआ है 1995 के अंदर. तो ये क्वेश्चन ISI में 2017 में दोबारा से देखिए यहाँ पे. सो मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसका सॉल्यूशन भी बताया था, अभी दोबारा से हम करेंगे इसको. देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था एरिया अंडर कर्व एंड टू डूज थ्योरम पे, तो देखते हैं बच्चों. यहाँ पे फर्स्ट विल ड्रॉ, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरह का सिचुएशन है. पहले तो मैं स्क्वायर बनाऊंगा, समवन लाइक दिस, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हो गया 0, ये 1 हो गया, ये आपका हो गया -1 1, ये हो गया -1 एंड दिस इज 1 -1. ऑलराइट, नाउ यहाँ पे जो भी रीजन आना है एक सिमेट्रिक आएगा इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स, राइट. सो इसमें क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या देखिए कि कोई पॉइंट है P इनसाइड दिस स्क्वायर विच इज क्लोजर टू ऑरिजिन दैन टू एनी एज. तो सपोज मैं अगर बाउंड्री की बात करूँ, इसके बाउंड्री की इक्वालिटी की बात करूँ, जिसका एज और ऑरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे आप देखें कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट ले तो हो सकता है ये डिस्टेंस ज़्यादा हो ये कम हो, तो ये बाउंड्री नहीं है. हमें बाउंड्री के को देखें तो हमें डिस्टेंस इक्वल करना है.
तो देयर विल बी सम पॉइंट जिसका डिस्टेंस यहाँ से जो आ रहा है वही यहाँ से आ रहा है, सपोज ऐसा मान लेते हैं दिस पॉइंट। तो अगर मैं, और फिर यहाँ से भी देखना है हमें, फिर यहाँ से भी देखना है और यहाँ से। ये देखिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हो तो हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के एजेस ही देखें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो एक तरह से ये एक आप कह सकते हो डायरेक्ट्रिक्स हो गया अगर बाउंड्री की बात करें, और ये फोकस, ठीक है। तो एक पैराबोला आप मतलब अगर इफ़ यू आर कंसिडरिंग, इसको मैं ABCD नाम दे देता हूँ, राइट, ABCD। इफ़ यू आर कंसिडरिंग द साइड एज AB फर्स्ट, तो AB साइड से डिस्टेंस वही है लाइन से जो ओरिजिन से डिस्टेंस, एक पॉइंट लाइन से डिस्टेंस, मतलब पैराबोला बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और पैराबोला देखें तो पैराबोला कुछ इस तरह से यहाँ पे ये हाफ होगा वैसे, ठीक है। और यहाँ पे इस पॉइंट से जाएगा बिकॉज ये लेंथ 1 है और डायरेक्टली से भी डिस्टेंस 1 है, तो ये पैराबोला इस तरह से बनेगा अगर मैं AB से कंपेयर करूँ सिर्फ। तो चारों से एक एक बार कंपेयर कर लेते हैं और उसमें जो चारों का कॉमन पार्ट होगा वो हमारा फेवरेबल रीजन हो जाएगा, राइट। तो चारों का कॉमन पार्ट, तो ऑरिजिन से डिस्टेंस AB से डिस्टेंस से कम होना चाहिए, फिर BC से डिस्टेंस से कम होना चाहिए, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ इस तरह का पैराबोला बनना चाहिए रफली। यहाँ पे मैं इसी तरह से AD से ले सकता हूँ, एक सेकेंड, इसको बच्चों थोड़ा कलर चेंज करना चाहता हूँ मैं। या तो इसको कुछ इस तरह से, ओहो राइट, so like this, then अगर हम BC से कंपेयर करें तो BC से कंपेयर करें तो ऐसा कुछ आएगा पैराबोला, ऐसे ही इससे आएगा, और फिर इसके हिसाब से ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इनसे जो सराउंडेड है चारों पैराबोला से, जो एरिया सराउंडेड है मतलब इनक्लोज्ड बाय ऑल दीज 4 पैराबोलास, यही आंसर होगा। बिकॉज कंसिडर एनी पॉइंट ऑन इट, तो आप देखेंगे कि हमेशा ऑरिजिन से क्लोजर है दैन टू। तो पैराबोला का डेफिनेशन यहाँ पे आ रहा है, उसको यूज़ करना था लाइन और पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल करके। नाउ द फेवरेबल रीजन आपका जो है यहाँ पे बच्चों वो हो जाएगा ये एरिया पूरा जो सराउंडेड बाय दीज 4 पैराबोलास। कमिंग टू एनी वन, जैसे मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ ये जो पॉइंट है, सिमेट्री कहता है कि ये पॉइंट y इक्वल टू x लाइन पे आएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना चाहिए, तो ये y इक्वल टू x लाइन पे आना है, ये कंफर्म है बिकॉज ये सिमेट्री कह रहा है कि दोनों पैराबोलास मीट करेंगे। अच्छा, किसी पैराबोला का इक्वेशन भी आप निकाल सकते हो। अगर मैं इक्वेशन पे जाता हूँ, राइट, अगर मैं इक्वेशन पे जाता हूँ, सपोज आई एम टेकिंग एनी पॉइंट हेयर, जैसे यही पॉइंट लिया था, इस पॉइंट को मैं x, y नाम दे रहा हूँ, तो देखिए इस पॉइंट P को नाम ले लेते हैं P। सो कंसिडरिंग दिस पैराबोला, इस पैराबोला के इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द साइड AB। तो P का ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, P फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल टू P फ्रॉम साइड AB। ऑलराइट, तो इसका इक्वेशन आना है कुछ इस तरीके से, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस, इज वाई इक्वल टू 1 लाइन, राइट, 1 माइनस वाई, ठीक है।
मॉड लगा सकते हैं या नहीं भी, बिकॉज यहाँ पे 1 बड़ा है, y छोटा है 1 से। इसका स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर करके हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2y। तो या फिर y को आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला, पैराबोला, ये जो पैराबोला है इसका इक्वेशन हमने निकाला। तो यहाँ पे इफ आई कंसीडर दिस पॉइंट, पर्टिकुलरली दिस पॉइंट इज सपोज पॉइंट Q, तो फॉर Q ऑन y इक्वल टू एक्स ऑल्सो, सो हम क्या करेंगे, y को x डाल देते हैं इस पैराबोला पे। दैट इज सॉल्विंग, दैट इज फाइंडिंग द सेकेंड पैराबोला, मतलब ये वाला पैराबोला निकालने की बजाय मैं एक ही पैराबोला को y को सिमेट्री से कह रहा हूँ। तो इसको यहाँ से हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू, q को मैं अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा नाम दूँ, तो अल्फ़ा जो है वो आ जाएगा, इसका जो पॉजिटिव रूट है वो है -1 प्लस रूट टू, -1 प्लस रूट टू, राइट, यही आएगा। तो अल्फ़ा ये हो गया। नाउ कमिंग टू द एरिया, एरिया की अगर बात करें बच्चों, एरिया देखिए आप, एरिया, ये एरिया मैं स्केच कर रहा हूँ, ये एरिया यहाँ तक, इसी का डबल हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखें, मतलब सॉरी क्यू तक जाएंगे, हाँ ये एरिया। तो एरिया ये जो आ रहा है इसका डबल हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। और ऐसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, टोटल देखा जाए तो 8 टाइम्स आ रहा है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 8 टाइम्स एरिया बिटवीन द पाथ, ये जो ब्लैक, ये पैराबोला जो हमने लिखा है, और ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स। इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप्स लेने हैं, अपर माइनस लोअर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, या सो दिस इज, सो द एरिया इज 8 टाइम्स 0 टू अल्फा, क्यू तक जा रहा है। और अपर कर्व कौन सा है, हमने इक्वेशन ऑलरेडी निकाला हुआ, ये अपर कर्व का y इज इक्वल तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड माइनस है लोअर कर्व y इज इक्वल टू एक्स, राइट। सो यहाँ पे x कर देते हैं, इसकी बस हमें वैल्यू यहाँ पे निकाल के रख देनी है, और इसको हम फाइंड कर सकते हैं फटाफट। जैसे कि यहाँ पे 8/2 तो 4 लिख दूंगा, 4 हो गया, 0 टू अल्फा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो यह आ जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। एंड इसके बाद हम लिख सकते हैं 4 इंटू इंटीग्रेशन के बाद 2 अल्फा माइनस 1 प्लस एक्स होल क्यूब बाई 3, और ये हो गया आपका 0 टू अल्फा, राइट। तो 4 टाइम्स 4, ये कॉमन है आई थिंक, हाँ ये आ गया, और अल्फा तो ठीक है हमने पुट कर दिया फर्स्ट केस में। तो यहाँ पे आ गया 8 अल्फा विच इज़ 4, अच्छा 4/3 कॉमन ले लेते हैं, 4/3, तो बचेगा क्या, 6 अल्फा माइनस 1 प्लस अल्फा होल क्यूब, जब पुट करेंगे 0 तो 1 आएगा, यानी कि +1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसकी अल्फा की वैल्यू में मालूम है ऑलरेडी, तो इसको हम फाइंड करें तो देखते हैं क्या आएगा। इसमें यार ऐसा है कि 6 अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखिए 6 अल्फा इज -6 प्लस 6 रूट 2 प्लस 1 प्लस अल्फा इज √2, तो √2 का क्यूब हो जाएगा 2 √2, और ये आ गया आपका +1। तो फाइनली ये क्या आ रहा है बच्चों, तो फाइनली इसका जो आंसर निकल के आ रहा है विच इज 8 √2, अच्छा दिस वाज माइनस, आई थिंक यस दिस वाज माइनस, हाँ। सो ये आ रहा है फाइनली 4 √2, 4 √2 माइनस 5, 4 √2 इंटू, बाहर 4 भी है, तो 4 × 2 इंटू 4 इज 16 √2 माइनस 5 है, तो 5 इंटू 4 इज 20 डिवाइडेड बाई टोटल 3, 16 √2 माइनस 20/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। दिस स्क्वायर यूनिट्स, तो ये इसका आंसर है।
इस तरह से हमने एरिया इजीली निकाला। इसमें कुछ पॉइंट, द क्वेश्चन वाज वेरी गुड, बट हमने इसमें थोड़ी सिमेट्री यूज़ करी है, सिमेट्री इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट, सिमेट्री ऑफ y equal to x line, and we could find the curves, equation of curve and the points of intersection easily, and then the area 8 times the symmetry यूज़ करके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ये कह रहा है लेट g n to n be a function gn being the product of the digits of n, prove that gn is less than or equal to for all n belongs to n, find all n's for which n square plus 12 minus 12n plus 36 equal to gn। तो gn क्या है, कोई भी नंबर लो, जैसे आपने लिया 25 नंबर है, 2 डिजिट नंबर, उसमें प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स क्या है 2 इंटू 5 10, तो 10 जो है वो 25 से छोटा है, ये आ रहा है। ऐसे हर केस में आएगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ये प्रूव करना है। तो इसको हम बेसिक से कर सकते हैं। इसमें जैसे मैं पार्ट ए लेना चाहूँगा पहले, जैसे कि लेट एन बी कुछ के डिजिट नंबर मान लो, के डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर, लाइक ठीक है, जैसे n जो है आपका वो बेसिकली है ए के माइनस 1, कुछ इस तरह से ले सकते हैं, ए के माइनस 2a1, ये n डिजिट नंबर लिया, ठीक है ना, ये डिजिट्स लिखे हुए हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली जो ए के है वो 0 नहीं होगा, ए के 1 to 9 होगा, एंड जो रिमेनिंग है ए के माइनस 1 से लेकर जैसे a1 है वो 0 से लेकर 9 तक होएगा, राइट। दैट इज़ यहाँ पे आप n जो है वो कह सकते हो कि क्या है, a1 प्लस 10 a2 है ना, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस। तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली a1 प्लस 10 a2 है, 10 स्क्वायर a3 a1 a2 a3 है, और जैसे 3 में पावर 2 जा रहा है 10 का, तो यहाँ पे ए के जब मैं लास्ट लिखूंगा तो ये आ जाएगा पावर k माइनस 1 इंटू ए के, राइट, ये n हो गया। तो हमें अब जो प्रूफ करना है, सो मैं अगर gn की बात करूँ, gn तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स हैं, तो वो बेसिकली क्या है, वो है आपका देखा जाए तो a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू डॉट 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 ए के माइनस 1 इंटू ए के ना, जैसे a1 a2 a3 सारे क्या हैं, ये देखिए 0 to 9 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे अगर मैं जाऊँ तो 9 ये 0 to 9 है, ठीक है। सो 9 लेस देन और इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं 999 सभी वैल्यू रख दो, ठीक है, मैक्सिमम, तो 9 रेज पावर k माइनस 1 आ गया इंटू ए के आ गया। ऑब्वियसली ये चीज़ जो है देख सकते हैं आप, इज लेस दैन और इक्वल टू 10 रेज पावर k माइनस 1, 9 को 10 से रिप्लेस किया मैंने, इंटू ए के लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो चीज़ है वो डेफिनेटली n से छोटी है, बिकॉज n में दिस इज ओनली वन टर्म, देयर आर अदर टर्म्स ऑल्सो, दिस इज लेस दैन इक्वल टू n। हाँ, 1 डिजिट नंबर के लिए ये जैसे k अगर 1 हो ना, तो ये फिर सेम आएगा, gn इक्वल टू n आएगा, राइट, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन k इज 1। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया, ये डन हो गया। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, यही प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। पार्ट बी में आते हैं, एन स्क्वेयर माइनस 12n प्लस 36 इज इक्वल टू gn है, gn है, ठीक है, gn लिख देता हूँ, और gn हमने अभी भी प्रूव किया पार्ट 1 से लेस देन n। इसको अगर मैं फिर यूज़ करूँ तो आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 13n प्लस 36 लेस देन 0, और इसको अगर हम फैक्टराइज करें बच्चों तो n माइनस 4 इंटू n माइनस 9 आ रहा है लेस देन 0। इसका मतलब है कि जो n है वो 4 से लेके 9 के बीच में है, यानी इसका मतलब है कि n इज अ सिंगल डिजिट नंबर, और अभी मैंने बोला था कि सिंगल डिजिट नंबर है, दिस इंप्लाइज gn इज n, सिंगल डिजिट नंबर में gn क्या होगा, n होगा, ठीक है। सो यहाँ से वापस हम एक बार इक्वेशन पे जाते हैं, तो मैं gn को लिख पाऊंगा n डायरेक्टली, इक्वालिटी होल्ड करेगा, यानी कि यहाँ देखिएगा n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की मतलब इक्वालिटी होल्ड करेगा, यानी n इक्वल टू 4 है ना, एंड 9, तो 9 इंटू 13 81 और 9
9 इन ठीक है 9 आ रहा है ना, तो 9 एंड 4 इसको सेटिस्फाई करेंगे, 4 एंड 9 ओनली, एन की 2 वैल्यूज आ रही, आप इसको सेटिस्फाई भी करा सकते हैं। तो ये यहीं पे इक्वालिटी वाला जो ये वाला पॉइंट था ना, ठीक है। सो वैसे 13 इंटू, एक सेकेंड, ये 9 स्क्वायर इज 81, ये 36 है ना, 36 9 13, तो ठीक तो है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, हाँ ठीक है, 9 इंटू 13 इंटू 9 इज नॉट 81, ठीक है, इज करेक्ट। सो यहाँ पे 4 एंड 9 आर द ओनली पॉसिबिलिटीज। सो ये दो आंसर्स आ गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, लेट P1 P2 P3 बी प्राइम्स विद P2 नॉट इक्वल टू P3। इसमें 3 प्राइम्स की बात की गई है बच्चों, P2 P3 सेम नहीं है, सच दैट 4 प्लस P1 P2 एंड 4 प्लस P1 P3 एज वेल आर परफेक्ट स्क्वेयर्स, ठीक है। फाइंड ऑल स्क्वायर ऑफ सम इंटीजर, आई मीन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P1 P2, ये तीनों प्राइम्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ, 4 प्लस P1 P2 यहाँ पे आ रहा है, मान लो m स्क्वायर है, गिवन है परफेक्ट स्क्वायर, m इज सम इंटीजर, और 4 प्लस P1 P3 ये भी जो है आपका n स्क्वायर ले लेते हैं जो कि इंटीजर है, mn दोनों आपके इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे यहाँ से सीधा लिख सकता हूँ मैं P1 P2 इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 4 विच इज इन फैक्ट m प्लस 2 इंटू m माइनस 2 ऑल्सो, ऐसे दो फैक्टर बना सकते हैं सिंपली। और यहाँ से फिर से लिख सकते हैं P1 P3 इज इक्वल टू सिमिलरली n प्लस 2 इंटू n माइनस 2। देखा जाए तो यहाँ जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है, और यहाँ पे भी डिफरेंस 4 का आ रहा है, यानी कि एक चीज़ कंफर्म है, जो P1 P2 में डिफरेंस है वो 4 का होना चाहिए, P1 P3 में भी डिफरेंस 4 का होना चाहिए। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है P1 P2 का वो 4 है, एंड डिफरेंस जो P1 P3 का है सेकेंड रिलेशन से वो भी 4 का आ रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ मान सकता हूँ कि जो P2 है वो P1 प्लस माइनस 4 टाइप का होगा, एंड P3 भी जो है वो भी, या P1 को मैं लिख सकता था, P1 को P2 प्लस माइनस 4, P2 इज नॉट इक्वल टू P3, सो P3 इज ठीक है P, तो यहाँ पे P मतलब ठीक है P1 प्लस माइनस 4, लेकिन दोनों में प्लस नहीं आ सकता या दोनों में एक साथ माइनस नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पे गिवन है कि P2 इज नॉट इक्वल टू P3, राइट। तो P2 P3 अगर आप दोनों में प्लस ले लोगे तो P2 P3 इक्वल हो जाएगा ना, P1 प्लस 4 P1 प्लस 4, या दोनों माइनस, तो एक प्लस एक माइनस लेना चाहिए, राइट। सो यहाँ हम ये कह सकते हैं एज P2 इज नॉट इक्वल टू P3 बच्चों, सो हम यहाँ कह सकते हैं कि P2 मतलब अगर कोई एक ले लो कंसीडर, और दूसरा उल्टा हो जाएगा, फिर सेकेंड सॉल्यूशन उल्टा जैसे उसका लिख देंगे। सो कंसीडरिंग एनी वन ऑफ दीज टू, टेकिंग P2 एज P1 माइनस 4 एंड P3 एज P1 प्लस 4। तो यहाँ से मैं अगर बोलूँ ठीक है, सो P1 P2 सबसे छोटा लग रहा है यहाँ पे, P2 P1 P3, ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया P2 P2 प्लस 4, P1 ये आएगा ना, P1 देखिए P1 क्या आएगा, P2 प्लस 4, एंड फिर P3 क्या आ जाएगा, P3 हो जाएगा P1 प्लस 4, तो फिर ये P1 इज ऑलरेडी P2 प्लस 4, इट इज P2 प्लस 8। तो P2 के टर्म में P2 जो स्मॉलेस्ट यहाँ कंसिडर किया गया था, P2 प्लस 4 P2 प्लस 8 आ रहा है, ठीक है, इन ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। नाउ अगर मैं लेता हूँ P2 सबसे जो छोटा प्राइम है 2 लेता हूँ, ये वर्क नहीं कर रहा, डज नॉट वर्क, बिकॉज अगर मैं P2 को 2 लेता हूँ तो 2 एंड देन अगला हो जाएगा 2 प्लस 4 दैट इज 6 विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, डज नॉट वर्क क्लियरली। अब मैं P2 को 3 लेता हूँ, देन क्या हो जाएगा 3 P2 कर लेता हूँ नेक्स्ट प्राइम, तो यहाँ आ जा रहा है जो P2 P1 P3 है, ये क्या आ जा रहे हैं 3 7 एंड
11, चार चार ऐड किया, ये वर्क कर रहा है, इज परफेक्ट, इज अ सोल्यूशन, इज अ सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन आ रहा है. देन अगर मैं P2 को रिमेनिंग जो प्राइम्स हैं वो 6 के प्लस माइनस 1 फॉर्म के होते हैं, या आप 3 के प्लस माइनस 1 फॉर्म भी कह सकते हो. तो 3 का मल्टीपल में तो 3 है बस एक प्राइम, अब बाकी जितने भी हैं 3 के मल्टीपल नहीं होंगे, बट 3 के प्लस 1 या 3 के प्लस 2 फॉर्म के होंगे. 3 के प्लस 1 फॉर्म कर लेते हैं, P2 इज एनी 3 के प्लस 1 फॉर्म प्राइम. तो इस केस में क्या होगा, जो आपका P2, P1 और P3 जब आप लिखोगे तो वो आएगा 3 के प्लस 1, 4 ऐड करते हैं, 3 के प्लस 5 एंड 3 के प्लस 4 और ऐड किया तो यहाँ 9 आ गया. लेकिन जो लास्ट आपका 3 के प्लस 9 है, इज इट नॉट पॉसिबल, ये जो है वो प्राइम नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है, इज कंपोजिट, नॉट अ प्राइम, सो नॉट पॉसिबल, तो ये वाला पॉसिबल नहीं हो पाएगा. एक लास्ट 3 के प्लस 2 देख लेते हैं. 3 के प्लस 2 फॉर्म का कोई भी नंबर है तो P2, P1, P3 जो मैं लिखूंगा तो वो लिखूंगा 3 के प्लस 2, इसमें 4 ऐड किया, 3 के प्लस 6, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फिर से, एंड 3 के प्लस 10. यहाँ पे फिर से देखिए ये जो है वो कंपोजिट है, यानी कि ये भी जो है नॉट पॉसिबल आ गया. तो फाइनली इसमें एक ही सोल्यूशन आ रहा है, ले देखिए है ना, फाइनली 3, 7 एंड 11. या फिर आप इसको आप P1, P2, P3 की बात करें तो जो इसका आंसर फाइनली है वो मैं मेंशन करना चाहूँगा. जो फाइनल आंसर है, आंसर अगर मैं बात करूँ P1, P2, P3 की, तो ये आ रहा है P1 मैंने क्या निकाला, P1 हमारा मिडिल वाला था ना, हाँ ठीक है. सो वो हो गया 3, 7, 11, यानी 7, P1 इज 7, P2 इज 3 एंड P3 इज 11, 3, 7, 11. या फिर आप इसमें ये कह सकते हैं और करके ऑर्डर चेंज कर दिया तो P1, P2 आपका ठीक है, P2, P3 मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो हमारा 7, 3, 11 है ना, तो मैंने किसको चेंज किया यार, हाँ एक सेकेंड, ठीक है. P1 तो वही रहेगा, P2 तो 3 है हमारा. अब P2, P3 चेंज कर लो, मतलब P2, P3 ना आप 11, 3 कर लो, तो 7, 3, 11, 7, 11, 3, राइट, वो मैटर नहीं कर रहा, 7, 11 एंड 3, ठीक है. 3, 7, 3, 11 एंड 7, 11, 3. तो आप देख सकते हैं ऐसे P1, P2 प्लस 4 करता हूँ तो यहाँ पे 21 प्लस 4, यहाँ फर्स्ट में 25 आ रहा है, सेकेंड में, और इसमें आ रहा है 33. P1, P3 कितना आ रहा है, ये 77 प्लस 4, 81, वेरीफाई हो रहा है. तो यही दिस इज ओनली सोल्यूशन, यही आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखते हैं क्या है. ओके, इज अ गुड प्रॉब्लम. सो इट सेज let A is the set 1, 2, 3, 4 up to n. For a permutation P1, P2 up to Pn of the elements of A, let P1 denote the first element of P. Find the number of all such permutations P so that for all ij belongs to A, if I is less than J less than P1. देखो P1 क्या है, इसी में से 1 to n में से कोई एक एलिमेंट है. अब P1 से पहले जितने भी i j हैं, then j appears before i. this is a permutation of 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 n के कितने परम्यूटेशन होते हैं टोटल, n फैक्टोरियल, उन्हीं में से एक है ये. तो P1 कैन बी 1, P1 कैन बी 2, P1 कैन बी 7, ठीक है, कुछ भी हो सकता है अगर n 7 से बड़ा है या इक्वल है. तो यहाँ पे i लेस देन j लेस देन P1 है. P1 कहीं आपने फिक्स किया, P1 कोई वैल्यू ले ली, उसके बाद जैसे सपोज P1 आपने 7 लिया, तो 1 से 6 तक के जो एलिमेंट हैं वो आने चाहिए इस तरह से कि whenever i लेस देन j appears before i. तो इस परम्यूटेशन में आपको 1 to 6 कैसे दिखाई देगा, P1 के बाद जैसे पहले तो आप 7 लिख दोगे, P1 मान लो 7 है, तो आगे जो है जैसे मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लो A जो है आपका
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिया लेट। तो यहाँ पे मैं अगर इफ़ P1 इज़ P1 मैंने फिक्स किया है सपोज 7, ठीक है, या मैं थोड़ा छोटा 6 ले लेता हूँ। P1 सपोज मैंने यहाँ पे फिक्स किया है 6, देन क्या होगा, ये जो परमिटेशन P की बात करेंगे ना, वो हो जाएगा, पता है क्या वो हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले आपको P1 लिखना है, दैट इज 6 लिखना है। इसके बाद 6 के पहले जितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, थोड़ा इजी केस से इजी करके फिर जनरल सोल्यूशन बताता हूँ। 1 2 5 में जितने भी हैं, इफ आई इज लेस देन जे अपीयर्स बिफोर आई, यानी कि जे पहले आना चाहिए। यानी कि आप 1 to 5 के जो एलिमेंट, यहाँ देखो टोटल 9 एलिमेंट्स मैंने लिए हैं, तो यहाँ पे ना टोटल 8 बॉक्सेस बनाऊंगा। 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 बॉक्सेस में जो भी मतलब आपका यहाँ बॉक्सेस का मतलब यहाँ पे बेसिकली प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे जो 8 प्लेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके प्लेसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 8 प्लेसेस में हमें 5 प्लेसेस फिक्स करने हैं, क्योंकि ऑर्डरिंग में जो जब हम मैनेजमेंट करते हैं ना, तो हमें बस प्लेसेस का ध्यान रखना होता है। तो इन 8 प्लेसेस में से मैं 5 प्लेस चूज करूंगा, जहां पे मैं इसको सेट करूंगा इन द मैनर डिसेंडिंग ऑर्डर। लाइक ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, कि पहले मैं 5 रख दूंगा कहीं पे मैं 4 रख दूंगा, फिर यहाँ पे फिर नेक्स्ट वाला मान लो मैंने ये चूज़ किया हुआ है, यहाँ पे मैंने 2, यहाँ सपोज 1 ऐसे। और जो रिमेनिंग प्लेसेस बच गए 1 2 3, जो रिमेनिंग प्लेसेस बच गए वो उसमें 7 8 9 आएगा इसी ऑर्डर में। लाइक यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9। तो इसके लिए फिर एक ही तरीका बचेगा, जो रिमेनिंग 3 है, 3C3 कह सकते हैं आप, दैट इज़ 1। तो इतने वे हो जाएंगे फॉर दैट पर्टिकुलर P1 = 6। ऐसे P1 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे कुछ इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए बताया है। तो मान लो कि जैसे लेट जनरल कर सकते हैं P1 इज K, तो A हमारा क्या है बेसिकली 1 2 3 अप टू कहीं ना कहीं पे मान लो K होएगा, और फिर हमारा N है, तो ठीक है ना। इसमें ना आप जैसे K जो है हमारा P1 हो गया, ये हो गया P1। तो इससे पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं और इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स, इसको मैं फॉर द टाइम बिंग A1 सेट A1 कहता हूँ। सेट A1 सबसेट है मान लो, और इसको मैं ऐसा करते हैं, इसको जरा मेंशन करते हैं, इन दोनों सेट्स को यहाँ मेंशन करेंगे। कंसिडरिंग 2 subsets of A1 as 1 2 3 up to K minus 1 and A2 as K plus 1 K plus 2 up to N. इसके जो elements of A1 must appear in P. See, in P the first element is in P. The first element is K, is P1, right? तो यहाँ दिया हुआ P, पहला एलिमेंट K होगा। तो जैसे मैं P को मेंशन करूं इन P, जैसे मैं यहाँ बोलूँ कि P क्या होगा, तो पहला एलिमेंट है K, एंड रिमेनिंग जो आपके कितने प्लेसेस रह गए टू बी फिल्ड, ये हो जाएंगे N-1 प्लेसेस। तो यहाँ पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 as well as in A2 are fixed। कैसे भाई? तो देखो जो A1 के एलिमेंट्स है ना, वो जाएंगे डिसेंडिंग और ये असेंडिंग ऑर्डर में, ये जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या लिखना आपको,
So in A1, they appear, the elements, they appear in descending order. ये जो कंडीशन दे रखा ना, ये वाला कंडीशन, ए वाला फर्स्ट कंडीशन जो क्वेश्चन के अंदर. एंड इन A2 they appear in ascending order. ये फिक्स ऑर्डर फिक्स है, ऑर्डर हमें बस ना प्लेसेस चूज किए, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल यहाँ लिया था, राइट. तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे? सो नंबर ऑफ फेवरेबल परम्यूटेशन और केसेस, फेवरेबल परम्यूटेशंस इन P, ये हो जाएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ ways of selecting, number of ways of selecting k minus 1 places. इसमें देखो k minus 1 एलिमेंट्स हैं और these एलिमेंट्स जो हमें n minus 1 places से ना चूज करने, k minus 1 places from the n minus 1 places, from n minus 1 places where we will put the elements of A1, where elements of A1 A1 is put in order. ठीक है, in order. and remaining में क्या करना है हमें? obviously एक ही तरीका होगा, वो elements of A2 को डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है. सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि n-1 में से k-1 चूज करना आपको, और इसी को सिग्मा लगा दो, k कैन बी 1, k कैन बी 2, तो 1 से लेके सारे केसेस ऐड हो जाएंगे n तक, k कैन बी n. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, k वेरीज फ्रॉम 1 to n, where k वेरीज फ्रॉम 1 to n. दिस कैन बी डन इन n-1 c and k-1 वेज, और k वेरीज फ्रॉम 1 to n. तो इसका जो फॉर्मूला है सीधा सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट दे रहा है 2 raised power n-1. फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2 raised power n-1. आई होप यू गॉट दिस. तो ये था क्वेश्चन नंबर 7. तो डिसेंडिंग ये छोटे केस से आप समझ सकते हो. ये तो एक पर्टिकुलर केस के लिए था, पर्टिकुलरली फॉर के P1 इक्वल टू 6 ये था. ऐसे ही फिर P1 इक्वल टू 5 के लिए होगा, 8 के लिए होगा, सबके लिए सब ऐड करेंगे. तो 8c5, 8c4, 8c6 सब ऐड करें तो 2 raised power 8 आएगा इस केस में आंसर. यहाँ 2 raised power n-1 इज द जनरल आंसर. ठीक है. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 ये है, इज अ गुड क्वेश्चन. देखिए, लेट के एंड आर बी पॉजिटिव इंटीजर्स के दो पार्ट हैं, ए एंड बी दो पार्ट हैं यहाँ पे. सो आई हैव कंसिडर बोथ. ए पार्ट में कह रहा है के एंड आर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. लेट क्यू एक्स इज एक्स रेज पावर के प्लस A1 एक्स रेज पावर के प्लस 1 अप टू an into x raised power k plus n be a polynomial with real coefficients. Okay, coefficient real है, so that it may be negative also. coefficient negative और दोनों हो सकता है, और इंटीजर होना भी जरूरी नहीं है, real coefficient है. so that the function qx upon x raised power k, if you see carefully x raised power k ना सारे टर्म में कॉमन है, तो you can take it commonly. ठीक है, is strictly positive for all. so qx upon x raised power k definitely 0 पे डिफाइन नहीं है qx upon x raised power k, बट ये पॉजिटिव आएगा, ये कह रहा है फॉर ऑल real x satisfying mod x 0 to greater than 0 less than 1 upon 1 plus sigma mod of ai from 1 to n. तो इस सारे k के लिए ये qx upon x raised power k पॉजिटिव है, हमें ये शो करना है. अगर आप qx upon x raised power k को ध्यान से देखो, qx upon x raised power k को तो हम डिवाइड करें तो यहाँ एक 1 आ रहा है, तो 1 अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर है. और डेफिनेटली तो ये एक्सप्रेशन जो मैं लिखने जा रहा हूँ, जैसे 1 प्लस A1 x आ जाएगा, यहाँ पे A2 x स्क्वायर आ जाएगा, एंड सो ऑन an x रेज पावर n आ जाएगा. ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है. स्मॉल जैसे 0 पे 1 आ रहा है इसकी वैल्यू, और 0 पे मतलब वैसे ठीक है, टेंडिंग टू 0 है, डिफाइन है ये, बिकॉज डिनोमिनेटर में x रेज पावर k है. तो यहाँ पे बच्चों हम जैसे 0 से थोड़ा राइट जाएंगे तो स्टिल ये पॉजिटिव अचानक से निगेटिव नहीं हो जाएगा कि अगले ही पॉइंट पे. तो यहाँ पे ना एक कंटिन्यूटी है जिसकी वजह से कुछ टाइम तक ये
एक्सप्रेशन हमारा पॉजिटिव बना रहेगा, वो इंटरवल जिसमें ये पॉजिटिव बना रहेगा वो हमें यहाँ पे एक इंटरवल आएगा, बट हमें उसी इंटरवल का पार्ट है जो हमें प्रूव करना है, मॉड एक्स 0 से लेके 1/1 प्लस सिग्मा ऑफ मॉड ऑफ ए आई आई फ्रॉम 1 to n। इस सारे एक्स के लिए जो है ये हमारा क्यू एक्स अपॉन एक्स रेज पावर के पॉजिटिव आने वाला है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले देखें कि यहाँ पे ये बिगर कर सकता हूँ मैं, ये दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस, एक सेकेंड ये इसको मैं जरा अच्छे से लिख दूं, 1 माइनस, इसका मॉड अगर हम देखो एक चीज़ क्लियर है ना, जैसे मैं इसको मॉड में लिखना चाहता हूँ, मॉड A1 मॉड एक्स है ना, सारे में मॉड लगा दे रहा हूँ माइनस साइन के साथ, ऐसे करते ही आएगा। ठीक है, ये क्यों लिखा मैंने, बिकॉज एज देखो क्या आ रहा है कि A1x जो है वो डेफिनेटली माइनस ऑफ मॉड ऑफ A1x से बड़ा होगा। कोई भी चीज़ का जो कोई भी नंबर है ना, जैसे मॉड बिगर होता है ना, इस ग्रेटर देन और इक्वल टू कह सकते हैं आप, हाँ, तो माइनस ऑफ मॉड छोटा होता है मॉड ऑफ A1x से, जैसे कि हमें पता है ना कि मॉड x जो है वो x जो है मॉड x से छोटा है, लेकिन माइनस मॉड x से बड़ा है, इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इस तरह से सारे टर्म्स इसमें आ जाएंगे, सारे को मैंने रिप्लेस कर दिया, रिमेनिंग एज दिस एंड सो ऑन। दूसरी बात, मैं इसको फिर बिगर करूँगा, विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस मॉड A1 मॉड x माइनस मॉड A2 मॉड x। आई कैन रिप्लेस मॉड x स्क्वायर बाई मॉड x, इस तरह से सारे में। तो मॉड x से रिप्लेस किया, ये क्यों किया, एज फॉर mod x 0 to 1, see this number itself is less than 1। तो यहाँ x जो है mod x है वो 1 से छोटा, ये कह सकते हैं, mod x जो है यहाँ पे 1 से छोटा है, ये कह सकते हैं। तो क्योंकि ये नंबर लेस देन 1 है, 1/1 प्लस समथिंग, यानी डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे 1 से बिगर है, दिस नंबर इज लेस देन 1। तो यहाँ पे एज फॉर दिस हम कह सकते हैं कि mod ऑफ x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स। जैसे क्यूब ले लो तो मॉड एक्स स्क्वायर है, लेस देन मॉड एक्स है, ये सारे ऐसे आएंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। इन सबको मैंने मॉड एक्स से रिप्लेस किया है, तो इसके बाद जो हमें रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1 माइनस सिग्मा ऑफ मॉड ऑफ आई फ्रॉम 1 to n। सिंपल इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट किया है, ग्रेटर दैन वाले इनइक्वालिटी में हमें लाना था, क्योंकि ग्रेटर दैन 0 प्रूफ करना है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं ग्रेटर दैन के लिए माइनस मॉड एक्स इसको यूज़ कर रहा हूँ, इस वाले को। ठीक है, यानी ये वाला मॉड एक्स इज ग्रेटर दैन माइनस मॉड एक्स। और इसके बाद हमने फिर रिमेनिंग स्क्वेयर्स को भी मॉड एक्स में कन्वर्ट किया एज पर द रिक्वायरमेंट जो हमें प्रूफ करना है। नाउ यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर दैन 1 माइनस सिग्मा मॉड आई फ्रॉम 1 to n। और ये जो चीज़ है, एक सेकेंड, इसको मैं अब x को भी मैं लेके आऊँगा यहाँ पे। अच्छा ठीक था वैसे ये तो ना, एक सेकेंड ना, एज मॉड एक्स इज लेस दैन दिस, सो माइनस यहाँ पे लगा, माइनस साइन है बच्चों यहाँ पे, तो माइनस मॉड एक्स का क्या होगा, माइनस मॉड एक्स फिर बिगर हो जाएगा, माइनस मॉड एक्स जो है वो बिगर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन के साथ सिग्मा मॉड आई 1 to n अपॉन ये वाला क्वांटिटी मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ 1/1 प्लस सिग्मा मॉड आई फ्रॉम 1 to n। और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप, एलसीएम लोगे, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस सिग्मा मॉड आई विच इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी ग्रेटर दैन 0। तो फाइनली हमने प्रूव किया कि क्यू एक्स अपॉन एक्स रेज़ पावर के इज पॉजिटिव, जो हमें स्ट्रिक्टली पॉजिटिव प्रूव करना था for these values of x. Done for these values of x. Now coming to the b part, px is equal to b naught plus b1x plus br x is power be a non-zero polynomial with real coefficient m be the smallest positive number such that bm is not equal to 0.
तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जहाँ पे बी एम जीरो नहीं है, इससे पहले मान के सकते हैं कि बी एम माइनस वन अगर एग्जिस्ट कर रहा तो वो सारे जीरो हैं उससे पहले वाले. प्रूव दैट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px कट्स x एक्सिस एट ओरिजिन, दैट इज p चेंजेस साइन. ये जो पॉलिनोमियल है ये साइन चेंज करेगा जीरो पे इफ एंड ओनली इफ m इज एन ऑड इंटीजर. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे ले सकते हैं हेयर px जो है हम अज्यूम कर सकते हैं एज bm से स्टार्ट करके, उसके पहले वाले सारे कोफिशिएंट जीरो हैं, तो हमने यहाँ से शुरू किया अप टू बी आर एक्स रेज पावर आर. बी एम को हम नॉट जीरो कह सकते हैं, मतलब बी एम इज़ द फर्स्ट नंबर जहाँ पे जीरो नहीं है. सो अगर मैं इसमें बी एम एक्स रेज पावर एम कॉमन ले लूँ तो हमें जो एक चीज़ मिलेगी यहाँ वन आएगा और प्लस समथिंग आएगा बी एम प्लस वन बाई बी एम. उसको मैं बी एम जीरो नहीं है उसको ए वन नाम दे दिया, फिर कुछ इस तरह का फॉर्म बनेगा. ठीक है, तो आई मीन यही है. और ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन. तो इस तरह का कुछ हम कह सकते हैं ए आर एक्स रेज पर आर. ये सिमिलर एक्सप्रेशन आप देखिए लास्ट पेज पे जो क्यू एक्स था ना, ए क्यू एक्स अपॉन एक्स रेज पावर के ए वन एक्स प्लस ए टू, ये चीज़ है ना. तो ये सेम एक्सप्रेशन इस तरह का है. तो ये पॉजिटिव होगा. हमने ऑलरेडी इसको जो ना ये वाले पार्ट को हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है और ये वैसे कुछ दूर तक पॉजिटिव दिख भी रहा है, कॉमन सेंस है. और वैसे भी मतलब इसको हमने प्रूव किया प्रॉपर्ली. पॉजिटिव इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू जीरो, प्रूव्ड इन पार्ट ए, है ना. पार्ट ए में ऑलरेडी प्रूव किया. तो और कब तक, मतलब वो जो नंबर था यहाँ पे देखिए, ये जो राउंड सर्किल मैंने बनाया वन अपॉन इस तक, यहाँ तक के लिए हम क्या करेंगे. फॉर ऑब्वियसली ये तो नंबर पता है कि फॉर कोई नंबर स्मॉल एच ले लेते हैं जो कि उस नंबर वन अपॉन वन प्लस सिग्मा मॉड ए आई, आई फ्रॉम वन टू आर ले सकते हैं यहाँ पे. इसके लिए फॉर दीज एच, ठीक है, एच पॉजिटिव लिया है अप टू दिस. फॉर दीज एच इफ यू चेक द साइन, ठीक है, फॉर द साइन चेंज at x equal to 0, check pH. हम क्या करते हैं, ये पॉजिटिव क्वांटिटी जो h है और माइनस एच निगेटिव हो जाएगा, p ऑफ माइनस एच इंटू पी एच चेक करते हैं, राइट. p ऑफ माइनस एच इंटू पी एच चेक करते हैं, देखते हैं ये निगेटिव आना चाहिए अगर जीरो पे साइन चेंज है तो, ठीक है ना. तो जीरो के राइट में हमने लिया पी एच, जीरो राइट में एच लिया और लेफ्ट में माइनस एच. तो अगर जीरो पे साइन चेंज होना है तो इसकी वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए. देखते हैं निगेटिव कब आएगी. तो दिस मस्ट बी निगेटिव, ठीक है, निगेटिव. इसका मतलब क्या है, p माइनस एच, एक्स की जगह माइनस एच डालो यहाँ पे, तो ये आएगा बी एम और फिर h डालोगे तो बी एम आएगा. बी एम का स्क्वायर आ गया, बी एम स्क्वायर इंटू फिर ये माइनस एच का पावर m, फिर h का पावर m इंटू सम पॉजिटिव क्वांटिटी. ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ गया ये यहाँ पे. तो ये लेस देन जीरो कर रहा हूँ. तो इसका मतलब है कि अब बी एम स्क्वायर, तो बी एम इज नॉट जीरो, बी एम स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव क्वांटिटी है ऑलरेडी. तो h का पावर 2m आ रहा है, तो बी एम स्क्वायर h का पावर 2m, h इज पॉजिटिव, माइनस वन का पावर m, ठीक है. तो ये आ गया इनटू पॉजिटिव क्वांटिटी लेस देन जीरो. सो एवरीथिंग इज देयर. ये भी पॉजिटिव है, बी एम, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है. तो यहाँ पे फाइनली आ रहा है माइनस वन का पावर m इज लेस देन जीरो एंड विच इज ट्रू ओनली व्हेन, विच इज ट्रू मतलब यहाँ से लिख सकते हैं विच इज ट्रू या विच इज, ठीक है, पॉसिबल ओनली व्हेन m इज एन ऑड इंटीजर. ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे हमारा प्रूव हो जा रहा है. सो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ 2017 ISI टुडे सेशन. सो आई होप यू गॉट ऑल दीज सॉल्यूशंस. सो मैंने जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकते हैं पॉसिबल वो बताएं आपको.
starting from question number 1 to 8, and we'll talk about now the teaser question. Okay, before that एकलव्य के बारे में आपको अब तक आपको पता चल ही गया होगा, या फिर आप गूगल करें और इसके बारे में जानें, प्रीवियस ईयर्स के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके फीडबैक लें. सबसे बढ़िया प्रोग्राम है, स्पेशली जेई एडवांस के लिए जब आप रिवीजन प्लान करते हो तो एकलव्य ज़रूर ज्वाइन करो. इससे बढ़िया कोई प्रोग्राम नहीं. इसमें सारे करिकुलम हैं जो हमने जो डिज़ाइन किए हैं वो आपको पता चलेगा कि किस लेवल पे, किस अच्छे लेवल पे तो तैयार किया गया है. टेस्ट पेपर की बात करें या फिर उसके डिस्कशंस की बात करें, या कोई पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम लेके कैटर करेंगे बेस्ट वे से. ठीक है, इसके सारे करिकुलम्स आपको अपडेटेड मिलते रहेंगे. आप कुछ यूज़फुल लिंक्स हैं उसको नोट करें. यहाँ QR कोड है, इसको स्कैन कर सकते हैं. नोटिस बोर्ड है हमारा यहाँ पे, टॉपर्स नोटिस बोर्ड, जिसमें सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग टू गिव JEE 2023 नेक्स्ट ईयर, तो यू विल गेट एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर सेशन, योर बैच. तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं. जो गोइंग टू गिव 2024 JEE 2024 में देने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे सारे टेलीग्राम चैनल सेपरेट बनाए गए. इनमें आपको टाइम टू टाइम सारे डिटेल्स एंड अपडेशन यहाँ पे मिल जाएंगे बच्चों. हमारा एक वी इम्पैक्ट चैनल भी है यूट्यूब का, वहाँ पे भी सारा इन्फॉर्मेशन है. वहाँ टाइम टू टाइम हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं. तो वहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, IIT JEE के सॉल्यूशंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो IIT JEE के कम से कम 5 ईयर्स के मिल जाएंगे आपको. KVPY काफ़ी रिपीटेड एग्जाम था और उससे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं जो यूज़फुल हो सकते हैं आपके लिए, IIT के लिए भी. सिमिलर आइडिया पे कई बार IIT में सवाल आ जाते हैं, ISI में और CMI में भी. ISI CMI के भी हम क्वेश्चंस लोड कर रहे हैं, और इसके भी प्रीवियस क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस वी इम्पैक्ट चैनल पे मिलेंगे प्रीवियस कुछ ईयर्स के. और क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से डिटेल सोल्यूशन, कई बार कई क्वेश्चन में मोर देन 1 सोल्यूशन मिलेंगे, और 1 by 1 क्वेश्चंस को लिया गया IIT JEE वाले स्पेशली कैटेगरी में, KPY वाले में एक क्वेश्चन को एक वीडियो, छोटे वीडियो बना के डाले गए. तो आप इस पे जाओ और यू कैन एंजॉय द सॉल्यूशंस. ओके, नाउ कमिंग टू द टीचर क्वेश्चन फॉर द मंथ November 2nd week. Find the area of the region consisting of points which are nearer to the point 2,0 than to the bisectors of the coordinate axis. Bisectors of coordinate axis क्या है? वो y = x and y = -x लाइन्स हैं. तो उससे क्लोज 2,0 से पास हुआ एज कम्पेयर टू दोज 2 लाइन्स. ऐसा कोई रीजन आपको प्लॉट करना और उसका एरिया निकालना है. तो गुड क्वेश्चन. अगर आप इसको सॉल्व कर पाते हो तो हमें भेजो इसको. eklavyaSupport@vedantu.com इस मेल से आपको भेजना है. एंड टीचर क्वेश्चन, डोंट फॉरगेट टू राइट द सब्जेक्ट नेम. यहाँ पे आपने मैथ्स लिखना है, राइट. And if we'll check your solution, and if we like it, we will reach out to you on the same email ID through which you have sent the solution. And if we see your solution is correct, we like your solution, तो बच्चों you can be the part of एकलव्य program directly. तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, क्वेश्चन करें और हमें भेजें. So this was all about today's session. I hope you enjoyed it and you got all the solutions. All right. Bye bye. Take care. See you in the next week. Bye bye.